everyone. Yes, please. Yes, Pramal madam. Hello. Yeah. Yes. Yes. Good afternoon, everyone. I, Assistant Professor Komal Gagre from School of Education and Research, MIT EDU University, Pune, delighted to welcome everyone to the National Level Faculty Development Program on the art of keeping students engaged, gaining mastery, hosted by the Modern College of Professional Studies, Ghaziabad, India, MIT School of Education and Research, MIT Art Design and Technology University, Pune, in collaboration with Research Culture Society, International Scientific Research Organization. As we virtually come together on day 5 to commemorate the workshop on the art of keeping students engaged, gaining mastery, we are privileged to have in our midst esteemed personality who have graciously accepted our invitation. As rightly said by Jenny, technology can become the wings that will allow the educational world to fly further and faster than ever before, if we allow it. Today with us, we are having our esteemed speaker, Professor Dr. Manmohan Gupta, who is having more than 13 years diverse experience in the education field. Professor Manmohan Gupta is a recipient of the Education Ambassador Award from the Human Rights Education Association, India, holds an array of qualifications, including an MA, MA degrees in Sociology, English, Political Science, and Education, LLB, PhD, and UGC NET in Education. He currently serves as professor at Ras Bihari Bose Subari University, Dehradun, UK. Professor Gupta has authored 28 books, developed 8 psychological research tools, and published over 50 research papers in national journals. He is an editorial board member of 6 international journals and has received numerous awards for his contribution to research, publications, and teaching. Professor Gupta is a sought-after speaker and has participated in various conferences, workshops, and seminars globally. I again welcome you, sir, and over to you, Professor Dr. Gupta, sir. Worldwide. ज़्यादा समय ना लेते हुए advanced technology in teaching to enhance engagement. Before starting my PPT, I request you all, we will see a video on something and we will discuss after that what we see in this video.
We should use the technology for the enhancement of the engagement of the students in the classroom. हमारा जो पर्पस है कॉलेजेस में पढ़ाने का, स्कूल में, हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दे, उन्हें हम इस तरह की वीडियो जरूर दिखाएं कि आप लोगों की ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है। कमांडोज की ट्रेनिंग देखो कितनी टफ होती है, वो लोग देखो कितने हाई लेवल पर जाकर, किस पिच पर जाकर वो लोग काम करते हैं, किस किस तरह की चीजें सीखते हैं। तो क्या देश को चलाने की जिम्मेदारी जब हम लोगों ने अपने कंधे पर उठाई है, क्या हम लोग उस तरह का काम नहीं कर सकते? निश्चित रूप से क्लास में जाने के बाद हम लोगों को एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना जरूरी है जिससे कि हम क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हम लोगों का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का को तैयार किया जा रहा था, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था कि बच्चों का क्लास में एनरोलमेंट ज्यादा हो। 10 साल के लिए ये प्रोविजन रखा गया था कि 10 साल के अंदर अंदर हम इस चीज को अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक भी हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में क्रिएट नहीं कर पाए हैं। हम लोग आज भी बच्चे को क्लास से प्रॉपर नहीं जोड़ पाए हैं, चाहे हम टीचर हों या टीचर एजुकेटर हों। हम आज भी बच्चों को उस लेवल तक वो चीजें नहीं पहुंचा पाए हैं कि बच्चा क्लास में आने के बाद महसूस करे कि हाँ मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ, उसका खुद का इंटरेस्ट क्रिएट हो। और उन्हीं सब चीजों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए, बच्चों के एंगेजमेंट के लिए, बच्चों को कुछ नया देने के लिए, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। What are the differences between two picture? Is there anyone who can explain? कोई इस दो पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है कि इन दोनों में क्या है? यस। Yes, there is a difference in the use of technology in these two pictures. In one of the classroom, we can see that the teacher is just writing down on the board, but in the second, in the side pic, we can see that the children are learning through laptops. Yes, definitely. There are two types of picture. First one is full of technology, and second one is just traditional method. In traditional method, we can see there are so many students, all are not getting participate. Some are passive and some are active. But in the technological classroom, there are all participants are active. दो पिक्चर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे एक्टिव हैं और कुछ पैसिव हैं। एक पिक्चर में कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ पैसिव हैं, लेकिन एक पिक्चर में प्रॉपरली एक्टिव हैं। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग द नॉलेज with the help of their interest, with the help of ICT, with the help of technology. हम लोग भी जब मार्केट में निकलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को भी कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश होती है। हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ नया देखें। मार्केट में हम लोग जब परचेजिंग के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ शॉपकीपर से क्या बोलते हैं, भैया कुछ ट्रेंड का दिखाइए ना, कुछ नया हो तो दिखाइए ना। देन व्हाई नॉट इन द क्लासरूम? बच्चे भी कुछ नया चाहते हैं। हम लोगों को भी एक ऐसे एफर्ट्स पुट इन करने होंगे कि हम बच्चों को इजीली उनके वे में जाकर बच्चों को सिखा पाए। We learn 20% of what we hear. We remember 30% of what we see. We remember 50% what we see and hear. But we remember 90% of what we say and do. हम जो भी
खुद से करते हैं और खुद से बोलते हैं, मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट जब हम लोग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लर्निंग 90% तक पहुंचती है। आई हियर आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी आई रिमेम्बर, मैंने देखा और मुझे याद है। आई डू आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब मैंने किया तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया। बच्चों का क्लास में पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम लोगों को उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाना है, उन लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कराना है। टीचर क्लास में आए, बच्चों को बोले और चला जाए, दिस इज नॉट अ गुड टीचिंग। टीचिंग इज दैट वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स विल प्ले द एक्टिव रोल इन द क्लासरूम, दैट इज द गुड क्लासरूम, जहां टीचर बच्चों को समझे और बच्चे टीचर को समझे, जहां बच्चों को कुछ करने के लिए, खुद के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हो, बच्चों के पास कुछ ऐसा हो कि वो खुद से कुछ करके सीखें। उनके पास कुछ, आप क्लास में कुछ इस तरह के मॉडल्स यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें क्लास में यूज कर सकते हैं कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अभी बीएड में सेकेंड ईयर में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, लेसन प्लानिंग पर। जब हम लेसन प्लानिंग तैयार करते हैं तो बीएड सेकेंड ईयर में भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर भी कहा गया है कि हम लोग सेकेंड ईयर में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए लेसन प्लानिंग कराएं। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ लेसन प्लानिंग, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इवैल्यूएशन अप्रोच, हर्बर्शियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस, है ना। अभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को भी आफ्टर 2015 फॉलो किया गया, कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में भी यही कहा गया है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाए, क्योंकि जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे, जितना वो एक्टिव रहेंगे क्लास में, लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम और इन एजुकेशन। Technology is a powerful tool that can support and transform education in many ways, from making it easier for teachers to create instructional material to enabling new ways for people to learn and work together. With the worldwide reach of the internet and uniquity of smart device that can connect to it, a new age of any time, anywhere, education is growing. It will be up to instructional designers and educational technologies to make the most of the opportunities provided by technology to change education so that effective and efficient education is available for everyone. Advanced technology in education. There are some technologies which can use in the classroom to make teaching learning alive, like visual reality, virtual reality. Virtual reality is a concept in which a student feel like that he's not in a on this earth. He feel like that he's in a different world. तो लगता है कि मतलब मैं जमीन पे हूं ही नहीं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी जगह, जब हम लोग मेले वगैरह में जाते हैं या कहीं इस तरह की कोई वर्कशॉप्स होती है कहीं पर, इस तरह की जो 3D मॉडल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, 3D चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। अब तो 7D और 8D तक भी चीजें चली गई हैं। वहां पर इस तरह की डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह की डिवाइस का यूज किया जाता है जिसमें बच्चे उसको लगाने के बाद ऐसा फील करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। बच्चों को कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें उनके लिए यूज की जाए कि बच्चों की लर्निंग बढ़े, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े, बच्चों का इंटरेस्ट क्लासरूम में क्रिएट हो। पर्पस ही हमारा यही है टेक्नोलॉजी का क्लास में यूज करने का, कि हम चीजों को इतना इजी बना दें, इजी टू इजी, कि बच्चे जो उनके सामने कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं उन चीजों को रिड्यूस करके हम बिल्कुल इजियर वे में एजुकेशन को बच्चों तक ट्रांसफॉर्म करें। सेकेंड वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी. Augmented reality is an interactive experience that combines computer-generated content with the real world. It can affect multiple senses, including visual, auditory, etc.
AR can make visual change to a natural environment or add new information to it. हम लोग कई बार क्लासरूम में बच्चों को इस तरह की चीजों का यूज करके बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई प्रोजेक्टर का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सभी टीचर से हम लोग करते भी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा वो डल एनवायरनमेंट होगा। मेहनत लगती है हम लोगों को, टाइम, ये सब लोगों के सामने प्रॉब्लम्स होती है। We don't have time, so much time. There are so many works in the department or colleges, and how we can make the PPT, how we can prepare this thing, and how we can present this thing. लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे, डेफिनेटली हम लोग एक ऐसी चीजों को क्लास में जरूर डिलीवर कर पाएंगे जो बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। There are so many content on the website, so much content, videos, PPTs already available. We just go to the internet and download it and present in the classroom. थोड़ा सा प्रयास करना है कि बच्चों को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, अभी हम लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे किताब से पढ़ना कम पसंद करते हैं, लेकिन मोबाइल में वही वीडियो आप चला दो, वही पोएम चला दो, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ बच्चा, आज हम भी जुड़ना चाहते हैं और बच्चा भी जुड़ना चाहता है। हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन आज का बच्चा इतना उस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी ज्यादा जानता है, क्योंकि मोबाइल फोन अभी बहुत कम समय हुआ है कि सभी उसका यूज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। 20-25 साल के अंदर अंदर मोबाइल का फोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक समय था कि हम लोगों को मोबाइल में नंबर टाइप करना भी प्रॉब्लम होती थी, और अभी छोटे बच्चों को देखो आप, 3 साल का 4 साल का बच्चा मोबाइल के वो फंक्शन भी ऑपरेट कर लेता है जो हम लोग नहीं ऑपरेट कर पाते। बच्चा ऑलरेडी हाईटेक है और हम ट्रेडिशनल मेथड पर आज भी जी रहे हैं। आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आज भी वही घिसे पीटे मेथड की क्लास में गए, बच्चों को लिखवाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया, बच्चों ने लिखा और क्लास से बाहर आ गए। वी शुड चेंज, वी शुड गो टू द क्लासरूम विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक हम लोग बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं क्लास में जाएंगे, जब तक हम बच्चों को वो चीजें नहीं देंगे जो बच्चा चाहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, बच्चा क्लास में नहीं जुड़ेगा। आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या चीज कहती है। रियलिटी के बारे में काफी कुछ सुना है। अब ये क्या है, कैसे काम करती हैं, इनमें क्या अंतर है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। देखिए, हमें यहाँ नाम से ही पता चलता है रियलिटी यानी कि रियल, असली है, और वर्चुअल यानी कि वो असलियत में नहीं है। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक हेडसेट पहनकर किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, जो आपको लगता है कि वो असलियत है, लेकिन आप वहीं खड़े होते हैं और वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। स्क्रीन पर आप चाहे वर्ल्ड टूर देख रहे हो, चाहे कोई 360 डिग्री की वीडियो देख रहे हो, तो आप जैसे जैसे अपना सिर घुमाओगे तो आपको लगेगा कि आप उसी दिशा में मूव कर रहे हैं। वो हैंडसेट पहनने के बाद आपको लगता है कि आप उसी जगह पर हो, उसी दुनिया का एक हिस्सा हो। इसके अलावा दोस्तों, आप 360 डिग्री की यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं हैंडसेट के थ्रू, क्योंकि यूट्यूब में 360 डिग्री की वीडियोस का भी एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 3D गेम्स है, तो इन गेम्स में जो शूटर है, अगर आप एक हैंडसेट पहनकर गेम खेलते हैं तो आपको
ऐसा लगेगा कि जो शूटर है वो आप खुद हो, और आप जैसे जैसे अपनी गर्दन घुमाओगे वैसे वैसे चीजें आपको इंटरेक्ट करेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी का एक हिस्सा हैं। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को यूज करने के लिए आपके फोन में जायरोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जायरोस्कोप नहीं है तो आप वर्चुअल रियलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, मगर आप एक हेडसेट लगाओगे तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को एक बड़े स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपके फोन में जायरोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आर्गुमेंटेड रियलिटी क्या होती है। देखिए दोस्तों, आर्गुमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का एक नेक्स्ट स्टेप है, ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा महंगा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है वर्चुअल रियलिटी से। दोस्तों, आर्गुमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आप पूरा एक हेडसेट नहीं पहनते। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक सिंपल चीज है, आपके साइड में एक छोटा सा डिस्प्ले होता है, तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी ही दुनिया में हैं, लेकिन आपके कोने में एक छोटा सा डिस्प्ले आ जाता है जो आपको एक इन्फॉर्मेशन ओवरऑल देता रहता है। तो दोस्तों, आर्गुमेंटेड रियलिटी बेसिकली आपको दूसरी दुनिया में नहीं लेकर जाता है, वो बस आपकी ही दुनिया में कुछ नया क्रिएट कर देता है। आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दें तो आप एक गेम खेल रहे हो। अब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको एक ओपोनेंट भी चाहिए होगा, एक फाइटर चाहिए होगा। तो दोस्तों, हमने वो चश्मा पहन लिया। दोस्तों, हम उस चश्मे को पहनकर अपनी दुनिया तो देख ही पा रहे हैं, जो हमारे सामने सोफा, टेबल, चेयर्स रखे हैं वो सब तो हैं ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे और उन्हीं के साथ आपको अपनी जगह खड़े रहकर उनसे लड़ना होगा। गूगल ग्लास, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, मैजिकली, सोनी मैजिक लेंस इनका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। माना ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, मगर इनका जो कमाल है उसके सामने वर्चुअल रियलिटी कुछ भी नहीं है। सोनी के कैमरा अगर आपने यूज किए होंगे तो आपको उसमें आर्गुमेंटेड रियलिटी नाम का एक ऑप्शन मिलता है। उसमें अगर आप कोई फोटो ले रहे हैं अपने कमरे की, तो कमरे के बीच में से एक डायनासोर निकल जाएगा। वो डायनासोर ऐसा नहीं लगता कि आपने उसे चिपकाया हो, बल्कि ऐसा लगता है कि वो फर्श पर खड़ा है, इधर उधर चल रहा है, हिल डुल रहा है। तो दोस्तों, आर्गुमेंटेड रियलिटी जो है वो आपके एग्जिस्टिंग स्पेस में ही कुछ क्रिएटिव चीजें क्रिएट कर देती है और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटेड रियलिटी में फर्क बस इतना सा है कि वर्चुअल रियलिटी आपको आपकी सराउंडिंग से हटाकर किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है और आर्गुमेंटेड रियलिटी आपको अपनी ही सराउंडिंग में रखता है और वही चीजों को क्रिएट कर देती है। वर्चुअल रियलिटी हम काम में लेते हैं 3D टूर्स के लिए, 3D मूवीज वगैरह के लिए, लेकिन आर्गुमेंटेड रियलिटी को हम काम में लेते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए या गेमिंग के लिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इन दोनों रियलिटी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। Interactive learning tool. In the current era, a technological advance in education have been introduced interactive learning tools that have been become increasingly popular and common tool of learning in classrooms. That includes tablet, digital whiteboards, smartphones, iPad, laptop, and many more. क्लासरूम में आजकल हम सभी को मालूम है कि बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास भी आईफोन है। क्लासरूम को भी डिजिटल बनाने के लिए हम लोग डिजिटल व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग चौक का यूज करते थे, कपड़ों पर चौक डलती थी, क्लासरूम में डिस्टरबेंस होती थी, लेकिन डिजिटल व्हाइट बोर्ड से बच्चों को हम कम समय में बहुत अच्छी जानकारी डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके दे सकते हैं। Then artificial intelligence, AI. We all very much aware about AI, artificial intelligence, which is totally different to the intelligence of a human being. हम लोगों का सोचने का एक तरीका होता है, काम करने का एक तरीका होता है, हम एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, बट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर आर नो वे ऑफ वर्क। आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज कमाल हो चुका है। चैट जीपीटी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कंटेंट राइटिंग आजकल चैट जीपीटी पर बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे न्यू रिसर्चर्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है? नहीं। चीजें, टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा टूल हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा दुश्मन भी है।
टेक्नोलॉजी को हमें कैसे यूज करना है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल टू आवर कैरियर। आइए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अपना रोल प्ले करती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Sure, little kitty. Hey, little kitty. So, how's the new AI system working? Well, that's an answer we all must know to keep up with the changing time. So, in today's episode, let me answer this technological revolutionary question. What is artificial intelligence? Zoom in. So, you ever heard of Alexa or Siri, or seen a self-driving car? Or have you ever wondered how your phone's face recognition works? Well, believe it or not, all of these technologies have something in common, and that is they use artificial intelligence or AI to perform a task. And what is that? Well, before I answer that, let's see what the word intelligence stands for. Intelligence is the ability to gain and apply knowledge and skills. For example, when we learn the alphabet A to Z in kindergarten, we acquire this information and can use it to create words, sentences, or even solve many problems. Similarly, when a robot or computer uses the information programmed into it to solve problems, it is also using a form of intelligence. However, this type of intelligence is different from human intelligence. It is called artificial intelligence or AI. AI systems are designed to be able to learn from their experiences, adapt to new situations, and make decisions based on the available information. But the crucial question is it really helpful to us? AI can be used in many ways, from helping humans perform tasks more efficiently to allowing machines to perform tasks that would be difficult or impossible for humans to do. For example, AI can be used in robots to help them do tasks in factories or hospitals, or in self-driving cars to help them navigate roads and avoid accidents. One of the best things about AI is that it can process and analyze lots of data very quickly and accurately. This makes it a useful tool in many different industries like healthcare, finance, and retail, where lots of data needs to be analyzed to make good and quick decisions. So, in a way, it is a very powerful tool that is transforming our lives. But as they say, with great power comes great responsibility. So it's vital to use AI systems responsibly and not become too dependent on them, as it can make us more reliant on technology and less self-sufficient. This could potentially lead to decrease in motivation and a decrease in physical and mental activity, which would directly affect our health. On top of that, the biggest concern with the AI system is that it has the potential to disrupt existing industries and potentially replace human workers, leading to mass unemployment. Therefore, it is vital to ensure that its development and uses are guided by After next slide, we can say that artificial intelligence is very useful
tool which will help us to do something in a different way, to get new knowledge, to connect with a new world. It is very useful tool for our education system also. Cloud computing for education. Educational resource can exist for any part of world thanks to cloud computing technology. Vital resources such as written lesson, audio lesson, video and video assignments can be stored on a school's cloud terminal. हम लोग जब भी कोई कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कंप्यूटर पर काम करने के बाद हम लोगों को लगता है कि शायद हमने काम फिनिश किया, उसको डिलीट कर दिया और वो सब चीजें चली गई, बट ऐसा नहीं होता। वो चीजें कहीं ना कहीं क्लाउड में रहती हैं। अभी इस तरह की रिसर्च और भी बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग बोलते भी हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लाउड्स में घूमता रहता है, इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो पुराने जो साधु महात्मा संत भगवान उस तरह के जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं उन सबको वापस खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों की वॉइस आज भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में है। तो उस तरह की चीजों को हम ऐसा अपने स्कूल में भी यूज कर सकते हैं कि जो क्लाउड के रूप में हमारा डाटा इकट्ठा हम लोग उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम बाद में बच्चों को इजीली बता सके, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ा सके। 3D paintings. 3D paintings are already causing replace in the education sector and students are loving them. हमने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोग इस तरह की चीजें देते हैं, कुछ कलरिंग का काम देते हैं, कुछ 3D मॉडल्स उनके सामने रखते हैं, उसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ आज मुझे क्लास में मैडम ने ये चीज दिखाई थी। हम लोगों को जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताएं तो उससे हम जरूर कनेक्ट करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं। जब भी हम उन्हें माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएं, रियल टीचिंग के बारे में बताएं, तो बच्चों को मोटिवेट करें कि हमें क्लास में केवल पढ़ाना ही नहीं होता, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साथ कनेक्ट करना भी होता है। चार्ट्स इस तरह के बनाएं कि बच्चों को 3D मॉडल में प्रेजेंट हो, मॉडल्स इस तरह के क्लास में लेके जाएं जो 3D हो। हम लोग क्लास में यूज करते हैं, डेफिनेटली बच्चा कनेक्ट करता है। बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि आज क्लास में टीचर क्या लेके आए हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द डिफरेंस। हम लोगों को डेली कुछ नया चाहिए और बच्चे तो आजकल के बहुत ज्यादा शातिर हैं, बिल्कुल हर समय उन्हें हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए। उस तरह की चीजें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हम लोग एक ऐसी चीजों का यूज करें जो क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करे, जिससे कि हम लोग बच्चों की एंगेजमेंट क्लास में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। क्या इसका बेनिफिट होगा अगर हम लोग क्लास में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, क्या क्या इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Welcome to today's session on the integration of technology into the classroom. In this session, I'm going to focus on why, how and when technology should be integrated into classroom settings, and also discuss how to optimize the use of available resources and learning technologies. Over the past years, we've seen the continued integration of technology into the curriculum, yet what is interesting nowadays is that it is currently being used to transform the educational setting. But what exactly do we mean by technology integration? Well, infusing technology into the classroom basically means using technology as a tool to enhance the learning in a content area or multidisciplinary setting. It's intended to allow students to create and demonstrate what is being taught through the use of various applications in order to express their ideas, thoughts and learning. Students can use technology to learn content and show their understanding of that content, not just their expertise with the tool. Let's talk in practical terms. This could take the form of creating podcasts, making movies, or even recording songs. The product can then be presented to an authentic audience, one which is interested in the topic.
By this, I mean students will be able to share their work with others around the world and, at the same time, receive instant feedback on that work. The internet has therefore allowed learners to connect with others in the most unimaginable ways possible. Adam Bello, a technology training specialist in the USA, believes that if a lesson can be presented in a better way using technology, then digital tools should indeed be used in the classroom. The Common Core state standards in the US, for example, call for students to develop digital media and technology skills. So learners should be given the opportunity to create their own content rather than just absorbing it. With this in mind, we can focus on why technology should be integrated into the curriculum. One of the main reasons is that technology can help learners improve their problem-solving skills, especially in problem-solving based learning. Students can work together or independently to explore which tool can help them visualize the problem. In addition, it can lead to greater learner independence as learners work out for themselves what educational technology tool can be best used to express their knowledge. More importantly, students can work at a pace that suits their needs rather than lockstep, as expected in more traditional classroom setups. Because of this, teachers are able to check whether students have mastered a certain concept by accessing real-time dashboards, which allow them to monitor student progress. Students can also track their progression through peer or teacher feedback and by reflecting on their own learning. Let's turn our attention now to how teachers and school administrators should actually integrate technology into the educational context. While administrators consider the training costs involved in preparing teachers for this digital implementation, maintaining the equipment and also covering any hidden costs, teachers focus on delivering the curriculum in an appropriate way with the support of educational technology resources. In preparing lessons, teachers should not forget that technology is merely a tool for lesson enhancement and not a guiding strategy. In essence, technology shouldn't be used unless it is improving what educators are already doing. Teachers also need to bear in mind, of course, that although technology is all around us, not all students know how to use it for learning. And so, instructors will need to update their knowledge and plan their teaching accordingly so to ultimately help the learners. Furthermore, if teachers connect learning tasks to the real world, students become more engaged in their learning as they create the information into something of their own. This is far from the traditional academic model where students are expected to memorize something and then present it for a test. Lastly, when is integration of technology successful? Well, in my opinion, it's successful when technology is available for the task and when it becomes a routine part of our daily lives. What I mean by this is that it becomes second nature and not an effort to implement it into the classroom. Thus, teachers don't need to worry about what EdTech tools are accessible for the task, but instinctively use any tool to support the content being covered. Interestingly, research in the US has shown that as a result of the implementation of technology in schools, writing skills, science learning, and mathematical concepts have all improved. And this has all been made possible because the integration of technology has created technologically literate students, or what we call digital citizens these days. It has also helped strengthen engagement by linking students to a global audience, and has provided students with opportunities to practice their collaboration skills in real-world scenarios. In fact, research suggests that if we integrate technology with face-to-face teacher time, academic outcomes will be bettered as a result, rather than introducing it either on their own. And so, to briefly sum up today's session, we've discussed the integration of technology within a school environment, focusing on the why, how, and when. If you would like to explore more on any of the topics discussed, click on the links provided at the end of this unit. As always, remember to observe what is happening in your classrooms and be a reflective practitioner. We can collect the new data, new knowledge, different way of learning. We can learn everything within second
within time bound period. So technology is a very useful thing, and we should use the technology in our classroom also, so that students can get some new knowledge, different knowledge. वो आ सकते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग भी बच्चों को एक हेल्पफुल हो सकती है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सेल्फ पेस्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बच्चों की हो सकती है, मेरी स्पीड बहुत तेज है, एक की स्पीड कम है, तो वो अपनी गति के हिसाब से बच्चा लर्निंग इजीली कर पाता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग होती है उसे कुछ नहीं, कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चा सीखता है तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको अपने आप से कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कुछ टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन के द्वारा भी बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कि बच्चा प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीख जाता है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, और क्योंकि बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करके सीख रहा है तो बच्चे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो जाती है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बच्चे के लिए आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर हम क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा कर पाता है। अदरवाइज तो फिर वही है कि हम लोग जो पुराने समय से सीखते आ रहे हैं, जो हम लोगों के समय में होता था कि क्लास में मास्टर जी आए, गुरु जी आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया, और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर गुरु जी चले गए, क्लास में किसी को समझ में आया या नहीं आया वो उनके लिए मैटर नहीं करता था। लेकिन आज का सिनेरियो कुछ और है, तब की बात कुछ और थी। आज बच्चा अपने अकॉर्डिंग सीखना चाहता है। आज बच्चा चाहता है कि मुझे जो सीखना है, जो करना है, वो कुछ अलग हो। आज का बच्चा वो सब चीजें नहीं सीखना चाहता जो हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बल्कि बच्चा वो सीखना चाहता है जो उसके मन में होता है, जो उसे लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद होगा। बच्चा आज वो सब चीजें सीखना चाहता है। देन नीड एंड इम्पोर्टेंस, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से क्लियरिटी कॉन्सेप्ट में आती है, बच्चों को क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो वो सीख रहा होता है उसको उसके बारे में पता लगता है कि हाँ मुझे क्या सीखना है और क्या करना है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है क्लासरूम में, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है, उसकी अटेंशन प्रॉपर क्लासरूम में हो जाती है। बेस्ट मोटिवेटर, टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट मोटिवेटर फॉर एवरीवन, बच्चे को मोटिवेट करता है। अभी हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का, ये तो क्लासरूम की हम बात करें, अगर नॉर्मल बात करें, हमारे हाथ में मोबाइल है तो पूरे दिन का कितना समय हम लोगों का मोबाइल में चला जाता है हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा क्लास में, हम उसको बच्चे के लिए पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक मोटिवेटर भी हो सकता है, बच्चों को सीखने में हेल्पफुल भी हो सकता है। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, बच्चे की मैक्सिमम सेंसेस बच्चे की यूज हो सकती है जब हम टेक्नोलॉजी का क्लास में यूज करते हैं। सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, हमारा टाइम सेव हो सकता है। टाइम कैसे सेव हो सकता है? डेफिनेटली अगर हम कुछ करेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम सेव कैसे हो सकता है कि कम समय में हम बच्चे को बहुत कुछ दे सकते हैं। फिक्सिंग एंड रिकॉलिंग द नॉलेज, बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लेता है और नॉलेज को कभी भी रिकॉल कर पाता है, क्योंकि जो चीजें हम देखकर सीखते हैं, जिसमें हमारी मैक्सिमम सेंस, मल्टी सेंसेस हमारी यूज होती है, डेफिनेटली दैट इज अ गुड लर्निंग। मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के भी आराम से टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस, उसमें सभी का ध्यान रखा जाता है। कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, कोई देर से सीख सकता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो स्लो लर्नर होता है वो भी अच्छे से सीखना शुरू कर देता है। एनकरेजिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के लिए भी ये हमें मोटिवेट करता है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की हम एक्टिविटीज यहाँ से ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्प से ले सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्टिव वैरायटी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग जब भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वे में चलती है, एक स्टेप बाय स्टेप मोड पर चलती है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के यूज से बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, बच्चे क्योंकि देख कर सीख रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी एक से ज्यादा सेंसेस यूज होती है,
तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी करते हैं और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़कर सीख सकता है। एनईपी 2020 में भी टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है और क्यों करना है। आइए जानते हैं। The National Education Policy 2020 has suggested various ways to integrate technology in schools. One of the key recommendations is to use digital technology for teaching and learning. It also emphasizes the importance of developing digital literacy skills among students. Incorporating emerging technologies like augmented reality and virtual reality can enhance the learning experience. It recommends the use of technology to track and evaluate student performance. Digital assessments can help reduce the burden of traditional exams and make the evaluation process more efficient. By adopting these suggestions, schools can create a more engaging and effective learning environment for their students. The National Education Policy of 2020 aims to bring a change in the way kids learn in school. The policy suggests that schools must adopt new pedagogical methods to make learning more engaging for students. One such approach is collaborative and project-based learning, where students work together to solve problems and learn from each other in the most fun and engaging way. The NEP 2020 recommends the use of technology to create immersive learning experiences. The NEP 2020 also encourages the use of assessments that evaluate a student's comprehensive understanding of the subject, rather than rote learning, by encouraging them to learn by doing. With the implementation of the NEP 2020, we can create a learning environment that is interactive, fun, and meaningful for students. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज न सिर्फ क्लास में बच्चों को एंगेज करने के लिए, बल्कि इसके साथ ही साथ हम बच्चों के साथ उनका टीचिंग मटेरियल शेयर करने के लिए, बच्चों को कुछ अलग चीजें देने के लिए, उनके इवैल्यूएशन के लिए, रिसर्च के पर्पज से भी, और बहुत सारी तरीके से हम लोग क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपनी टीचिंग लर्निंग को जिंदा रख सकते हैं। बच्चों को वो सब चीजें दे सकते हैं जो बच्चा चाहता है। आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है जो पुराने समय का बच्चा था, बल्कि आज का बच्चा बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा उन सब चीजों को समझने वाला है कि आज के बच्चे को वो सब नहीं चाहिए जो पहले के बच्चे को चाहिए थी, बल्कि डिफरेंट नए मेथड से बच्चा पढ़ना चाहता है, अलग अलग चीजों को सीखना चाहता है, एक न्यू वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहता है, इस पुरानी दुनिया से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहता है। और वो सब हम बच्चे को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स which are related to the technology. So in the conclusion, we can say that use of technology is a very nice option to every teacher, every student. Smart board, computer, mobile phone, tablets, there are so many options, so many things, so many devices are there we can use in the classroom. मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जितना भी एक टीचर होने के नाते जो हम लोगों का फर्ज है कि हम बच्चों को उसके लेवल से जाकर सिखाएं, कुछ वो सिखाएं जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा करना चाहता है, उस तरह की चीजें बच्चे के सामने रखें, बच्चे को वो सब चीजें सिखाएं, और अपना उद्देश्य जो कि समाज को कुछ देना है, कुछ अच्छा करना है, वो हम लोग अपना पूरा करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।
Receive 1,400 rupees on Google Pay for. Yes, participants, now we can open the sessions for your questions or queries. If you have any question queries, please unmute yourself. This is the discussion session now open. Receive 3. Yes, participants, if you have any questions, queries, you are requested to unmute yourself and you can ask. Good evening, sir. Yes. Yes. Sir, it was definitely a very good informative session, but it would have been more to understand better in a good manner that if you would have given an example that in day-to-day learning of at a school level and at college level, then it would have been more clear that how to apply it. Because I think that these days, we all teachers and educators know these things, that these are AI are there, technology is there, but how to imply it, it would have given more clear understanding. And we were looking for that, sir. So if possible, if there is time, even then, if you want to, please give few examples at school level teaching and as well as for college level teaching. So this will be then more informative for us, sir. Thanks, sir. Yes, ma'am. Yes. At school level, we can use the projector. We can use the different types of smart boards also. And at college level, we can use the AI tool like ChatGPT, research tool. There are so many websites for the data collection, for the knowledge sharing. We can use it for the higher education also. I think, sir, these days, all these tools are being used in schools, in almost every good schools, at least in, this is my personal experience, that private schools, as they are more focused to grind money, so that's why they use these tools to project their good learning process at their schools. But what I find that presently in government schools and colleges, sorry to say, sir, that I do not find that these technological tools are being used. Only basic tools. They are using only basic. That you have said, that board and these things. It is only up to there. Definitely. And Definitely, so much, sir. On behalf of Modern College of Professional Studies, Ghaziabad, India, MIT School of Education and Research, MIT Art, Design and Technology University, in collaboration with Research Culture Society, I would like to express our sincere gratitude to our esteemed guest speaker, Professor Dr. Manmohan Gupta, sir, for sharing his valuable insights and expertise with us. We are also grateful to all the participants for guiding and facilitating this enriching discussion.
Your contributions have greatly enriched our understanding of incorporating advanced technology in teaching to enhance engagement. Thank you for being an inspiration to our community. So thank you so much, sir, and all the participants. Thank you, ma'am. Thanks to all of you. Can I leave, ma'am? Can I leave? Yes, yes, Rupal. Yes, yeah. Okay, thank you, sir.